configurational data and transactional data. Clear? So 3 types of data are there. Now, what does this mean by configurational, master, and transactional data? Let us understand this. Okay. So let us understand in this way. So Vishal, suppose take an example. Do you have mobile application through which you can transfer money to some of your friend or colleagues or anybody, relatives or someone? Do you have any mobile application? Right. I have. Which bank? If I know, HDFC, ICICI. ICICI. Okay, so you are having the iMobile application. Okay. Yes, so sir. team, try to understand. Now we will understand what is the type of data. Suppose Vishal want to transfer some amount to me. Okay, I ask you, Vishal, please pay me 10,000 rupees. So what Vishal is going to do? Vishal is going to ask me some couple of questions. Umesh, I don't have your account details, so could you please provide me the account details? Okay, so what account details he will going to ask me? Vishal, क्या क्या लगेगा आपको? अगर आपको मेरा नाम आपके अकाउंट में एज ए पेई डालना है तो आपको क्या क्या लगेगा? आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड. परफेक्ट. सो अकाउंट नंबर लगेगा, बराबर है? माय अकाउंट नंबर, then bank name, okay, Yes. then IFSC code, then account type एक लगता है, कौन सा टाइप है, सेविंग है या कौन सा अकाउंट है, राइट? ओके, एंड मे बी मोबाइल नंबर और some more details or not, maybe not. Okay, इतना 4 हो गया, इसको भी काफी है. So guys, what is this? This is a master data. Okay, क्योंकि हर एक बंदे के इसके साथ ये डेटा चेंज होने वाला है, तो दिस इज कॉल्ड द मास्टर डेटा is uploaded by super user. Okay, what is a super user now? Super user is the person who is going to have the authorization to upload this data. Okay. Okay. Sorry. Okay. So mostly super user, sometime end user. Okay, we will understand this concept, super user, end user once again, but as of now, try to understand. Okay. Okay. Yeah, the clear. Now Vishal is having this data with him. Okay. Now, if I say, Vishal, can you transfer me 1 lakh rupees? Okay, in one go. So Vishal is trying to do that, and he understand. Oh no, he cannot transfer in a one day, not more than. Okay, not more than 40,000. Right? Agreed? Yeah. Everyone, do you know this is RBI rule? That this amount cannot be transferred more than this. Now we shall have limitation. Okay, ये रूल विशाल ने नहीं सेट किया, आरबीआई ने सेट किया. आरबीआई ने बोला हर बैंक को ये सेट करो, तो हर बैंक ने अपने अपने कंसल्टेंट लोग जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, लेकिन एक प्रोग्राम जो बनाया ट्रांसफर होने वाला, जो मनी ट्रांसफर होता है, वो प्रोग्राम में जाके उन्हें लॉक क्या लगा दिया, एक लिमिट सेट करके रखा है कि भाई 40,000 के ऊपर एक दिन में आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते. एग्रीड? So this is a limitation, or which is one kind of configuration or setting which is done in this program. So now when something is getting locked which is not in the hand of end user कौन है यहाँ पे? Vishal is end user because वो मोबाइल का एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो he is a end user, he cannot do anything in that. उसको मालूम है इतना लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन के हिसाब से उसको काम करना है. So now this consultant, this activity will done by a consultant. ये जो लॉक लगाना है 40,000, अगर फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट बोलते नहीं नहीं नहीं, वी आर फाउंड दैट लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग द इशू एंड वी मस्ट हैव टू इंक्रीज दिस लिमिट, सो लेट्स डू वन थिंग, मेक इट 1 लाख रुपीज. तो कल जाके गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रूल चेंज कर दिया. दे से दैट वी कैन गो विद 1 लाख रुपीज पर डे ट्रांजेक्शन विद इन एनी अकाउंट नंबर. सो क्या होगा, somebody has to go and change that limit. तो विशाल जाके खुद नहीं चेंज कर सकता. somebody from bank side who is a consultant, authorized software engineer, he only or she can only make the correction. Okay, so those are the consultant, supreme power. Okay, agreed? Clear? यहाँ तक clear है सबको? तो ये जो डाटा है जो भी कॉन्फ़िगर किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, that is called as a configuration. Clear? Yes sir. Agreed? अभी जब विशाल मुझे 10,000 ट्रांसफर कर सकता है, उसने मुझे 10,000 ट्रांसफर कर दिया, तो विशाल के मोबाइल पे एक पॉपअप मैसेज आता है, योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. एग्रीड? तो जो भी आप
मनी ट्रांसफर करते हैं बैंक में जाके, या फिर आपका एफडी अकाउंट खोलते हैं, या फिर पैसे विड्रॉ करते हैं, या फिर सिर्फ अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करते हैं, या फिर आपका कोई भी पेमेंट किसी के पास से रिसीव होता है, या फिर आप फोन पे गूगल पे कोई करते हो, या फिर वो रिचार्ज मारते हो, तब भी जो भी होता है चीज उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। एग्रीड? सो एंड यूजर जो भी एप्लीकेशन यूज करता है, सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसमें जो भी वो मूवमेंट करता है, लाइक डेबिट क्रेडिट जो भी हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। सो सिमिलरली इन एसएपी दिस थिंग्स गोइंग टू हैपन। सो हमारे इस अभी के जो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें विशाल इज ए एंड यूजर, समवेयर ही कैन वर्क एज अ सुपर यूजर, क्योंकि वो मास्टर डेटा भी मेंटेन कर सकता है। ठीक है? सो दिस इज द वे डेटा इज divided into three types: configurational data, master data, and transactional data. Clear? Okay, team. Any doubt on this point? No, sir. Clear? Are we clear on this? Yes. Okay. Just a minute. ओके, चलो ठीक है टीम। तो यहाँ तक क्लियर आपको? नाउ हियर व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। सो कॉन्फ़िगरेशनल डेटा, मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास एसटीपी में कॉन्फ़िगरेशन डेटा भरने के लिए कॉन्फ़िगरेशन टी कोड रहते हैं। ओके, और मास्टर डेटा के लिए मास्टर डेटा के टी कोड रहेंगे। ओके ओके, देन वी विल हैव ट्रांजैक्शनल डेटा के लिए ट्रांजैक्शन कोड रहेंगे। ठीक है? सो विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द फ्यूचर। तो जब भी मैं आपको कुछ बताऊंगा तो एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड, ओके दिस इज कॉन्फिगरेशनल टी कोड, दिस इज मास्टर डेटा कोड, and this is your transactional T code. Okay, so all our T codes are going to divided into this part. Okay, now there is something, one more thing I would like to update you. Okay, there is some thing as a called as a T code. This is your data, and now here we will talk about frequency. Now what do you mean by frequency? ये बार बार कितनी बार हो सकता है? ठीक है, अभी मुझे बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका कब होता है? मतलब एक बार होता है, या बार बार होता है, या हर बार होता है? हर बार होता है। Right? Think it again, Bhushan, before you answer my question. सेटिंग एक ही बार करना पड़ेगा सर कॉन्फ़िगरेशन को। परफेक्ट। सो वंस, ओके, अगर फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट ने आरबीआई रूल चेंज किया तो ही जाके चेंज करना है, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। मास्टर डेटा हर बार चेंज होगा, हर बार अगर नया यूजर है तो चेंज करना पड़ेगा। वैसा नहीं सोचेंगे, वैसा नहीं सोचेंगे। मेरा नाम है, मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, तो मेरे नाम का एक मास्टर डेटा क्रिएट होगा, तो बार बार चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो वो भी क्या होगा, वंस और एज ऑन व्हेन रिक्वायर्ड। सपोज मैं कल जाके बोल दिया, अरे एक काम कर, मेरा जो पुराना बैंक अकाउंट था ना, अभी उसमें मत ट्रांसफर कर, ये मेरा नया बैंक अकाउंट नंबर है, उसमें ट्रांसफर करो। तो वापस यूजर नेम है, यूजर बदल गया, मतलब उसका ऐप पे ही जो है उसका नाम वगैरह है, लेकिन अकाउंट की डिटेल चेंज करनी पड़ेगी आपको, तो आप उसको व्हेन रिक्वायर्ड चेंज कर सकते हो। राइट? राइट? व्हाट अबाउट ट्रांजैक्शनल डेटा? वो कब होता है? उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? दिन में एक बार, महीने में एक बार? जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तब वो डेटा मेंटेन होगा ना। तो ट्रांजैक्शनल डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? बराबर, यू आर राइट। आप बताओ, आप दिन में कितने बार गूगल पे, फोन पे कर सकते हो? ऐसा कुछ लिमिटेशन है? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। राइट? सो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो लिमिटेशन, इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट कैन हैपन एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो मतलब जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होने वाला है उसका कोई लिमिटेशन नहीं, जो भी एंड यूजर है वो बहुत बार कर सकता है। तो ये बार बार होने वाली चीज है, विच इज अ ट्रांजैक्शनल कोड और ट्रांजैक्शनल डेटा। ठीक है? ट्रांजैक्शनल डेटा यानी इन एसएपी टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हो, प्रोडक्शन ऑर्डर का कंफर्मेशन करते हो, या फिर आप जाके एमआरपी रन करते हो, या फिर आप जाके MD04 में जाके डेटा चेक करते हो, आप कोई रिपोर्ट रन करते हो, COIS या फिर COHV रिपोर्ट रन करते हो, जो भी आप एंड यूजर करके आप जो भी काम रोज दिन में जाके करना पड़ता है आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन डेटा। एग्रीड?
और एसएपी में मास्टर डेटा ने आपने आपने बिल ऑफ मटेरियल बनाया, आपने राउटिंग बनाया, वर्क सेंटर क्रिएट किया, दोज आर योर मास्टर डेटा. ओके. एंड कॉन्फ़िगरेशन डेटा यानी आपने प्रोडक्शन ऑर्डर का टाइप डिफाइन किया या फिर आपने प्रोडक्शन शेड्यूल प्रोफाइल डिफाइन की. All these are the configuration what we are going to learn in the future in upcoming sessions. So that is become your configurational data or configurational information. So ये सब हम देखने वाले हैं इसमें. तो ये सब जो डेटा है, ये सब डेटा आपके क्लाइंट लेवल पे मेंटेन होता है. What here we are saying, the client is the highest level in SAP organization structure and it store the master data as well as transactional data tables in a database. तो SAP में टेबल और डेटाबेस होता है, वो हम आने वाले एक दो सेशन में देख लेंगे व्हाट इज अ टेबल एंड डेटाबेस. बट एज ऑफ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको जो भी सब डेटा है ये आपके सबसे हायर लेवल एलिमेंट यानी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्लाइंट या फिर कस्टमर सॉरी कंपनी इस लेवल पे सब स्टोर होता है. यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं आपके सब यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. तो क्लियर, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा कंपनी पे. यहाँ तक क्लियर सबको, टाइप्स ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग. ओके. रविंद्र आर बी सॉरी भूषण आर बी क्लियर? अमोल, अजय, Yes, sir. Yes, sir. everybody clear? Shall I go next?